مسئلہ اس وقت یہ ہے، پیٹ کا درد محسوس ہوتا ہے نا، سر کا درد بھی ہوتا ہے، سال بعد حساب کتاب کرتے ہیں، بزنس مین کرتا ہے، محسوس ہوتا ہے یہ سال میرا کمی میں گیا ہے۔ بہاولپور سے گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی چلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد باقی 500 کلومیٹر رہ گیا ہے۔ ہر چیز کو محسوس کرتے ہیں نا۔ ایک متا تمہارے ہمارے سینوں میں ہے محمد عربی کی، اس کے کوئی لٹیرے آئے ہوئے ہیں پتہ ہے؟ ہر کمی کو ہم محسوس کر رہے ہیں، ہر کمی کو، شخصیت، نام، نمود، عزت، شہرت، فلاں فلاں کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ مجھے شعر پورا نہیں آتا، مضمون آپ کو دوں گا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نا، جگ دے آئے ہاسے نہ ہیسوں، نہ ہیسے نہ ہوسوں، میں جگ دے ہومنا ہو لگے۔ کیا ہیں ہم؟ میں آپ چھوڑیے، کائنات کا وجود ہی محمد عربی کی ذات کے بغیر نہیں ہے، اور اس ذات سے اتنی عظیم نسبت ہے۔ آپ کے دن رات کی کمائی دولت کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں، عزت و شہرت کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ معلوم ہے کچھ لٹیرے آئے ہیں جو آپ کی متا نہیں، جو محمد عربی کی عطا لوٹ رہے ہیں۔ حضور اعلیٰ سیدنا پیر محلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے جتنا بھی اکابر علماء کرام ہیں، سب کی زندگی بھر کی تگ و دو کیا رہی؟ کیا لٹ رہا ہے ابھی؟ چلے جائیے مزار میں، سپر مارکیٹ میں چلے جائیے، ورلڈ لیول پہ چلے جائیے، زندگی کی کون سی چیز ہے جو میسر نہیں؟ کون سی دنیا کی ایسی نعمت ہے جس کو تحفظ نہیں؟ اگر آج ہماری ہر چیز میں میسر نہیں تو ایمان نہیں، اگر تحفظ نہیں تو وہ ایمان کو نہیں۔ کل محمد عربی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ 2000 روپے کا اپنا شوز سنبھال کے رکھنے والوں، کبھی اتنی حفاظت ایمان کی بھی کی؟ یہ مرزائیت کیا ہے؟ یہ کیا جھگڑے ہیں؟ یہ کیا فسادات ہیں سارے؟ آپ یہ کہہ کر کہ مولویوں کا مسئلہ ہے، جھگڑا ہے، صد حیف کہ پھر اس کی قدر ہی نہیں کی کہ من کی دنیا میں کون سی دولت ہے جس کا نام ایمان ہے، جس کی وابستگی جناب رسول اللہ کے بغیر ناممکن ہے۔ ایک ظالم لٹیرا آیا ہے، آپ کے اکابر نے بہت پہلے بھانپ لیا تھا سب کچھ، تفصیلات ہر سال ہو چکی ہے۔ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں بڑی جانب، آپ اس کو چھوڑے، مولوی صاحب ہیں جی، مسجد کا مولوی ہے، ملا ہے، یہ ملا کی کیا اوقات ہے؟ ملا کہہ کر بات نہیں دفع کی جائے گی۔ 2 جنگیں چلی ہیں، سماوی مذہب دنیا پر حملہ آور تھا جس کا نام یہودیت و عیسائیت تھا۔ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو ہماجہتی زندگی کے دستور دیے، اصول دیے۔ 14 صدیوں میں دیکھیے، اگر ٹاکرا رہا ہے یہودیت اور عیسائیت کا تو صرف اسلام سے رہا ہے۔ کبھی یہودیت و عیسائیت بدھ مت کے ساتھ نہیں ٹاکرا ہوا، اس کا ہندو مت کے ساتھ نہیں ہوا۔ آپ اس کو چھوٹی مرزائیت نہ سمجھیے، یہ آپ کے چھوٹی سمجھ پر دلیل ہے۔ اگر ہے تو پھر غلام محمد گھوٹوی پر یقین رکھتے ہیں کہ یار وہ تو صاحب سمجھ تھے نا، پیر محلی شاہ صاحب پر یقین رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت پر یقین رکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ تو بڑے لوگ تھے نا۔ وہ بتائیے، دیکھیے کہ وہ کیا راہ دیتے ہیں۔ اس 14 صدیوں میں جو جھگڑا آیا ہے، میں آپ کو مرزائیت کا ایک اور تعارف آج کرا رہا ہوں۔ اس 14 صدیوں کا جھگڑا کیا ہے؟ مرزائیت اور اسلام کا ایسے ٹاکرا رہا ہے، اسلام کا اور عیسائیت کا۔ یہودیت تو نام نہاد کی رہی، پوری دنیا میں غالب عیسائیت رہی، صلیبی جنگ میں سب آپ کو معلوم ہے، کبھی اسلام کا پلڑا بھاری، کبھی یہاں کا پلڑا بھاری، لکھا ہے انہوں نے، اور غیروں کو پڑھ کر دیکھیں انہوں نے لکھا ہے۔
उन्होंने कहा ऐसे वक्त भी आए हैं कि हमने ख्याल किया इस्लाम नेस्त तो नाबूद हो जाएगा, खत्म। 60 लाख बंदा हमने बगदाद में अपना तातारियों ने मार दिया, फलां हुआ, ये हुआ, इस्लाम का वजूद खत्म। मालूम नहीं फिर नए सिरे से उभर के आ गया। मुताले का टाइम हो, अगर मोबाइल से फुर्सत हो, अपनी तारीख को पढ़ के देख लीजिए। थोड़ा ब्रेकट करूंगा, नौजवान बैठे उनके लिए थोड़ा ब्रेकट करूंगा। मैं उस तहजीब का हामिल हूं जो 14 सदियां पहले से रखता हूं। मुझे कतरवानी है, दाढ़ी बनानी है, बाल ये करना है, कंगा करना है, 5 वक्त मुंह धोना है, हाथ पांव धोने हैं, जुम्मा में गुस्ल वाजिब है, कपड़ा पाक रखना है, जगह को पाक रखना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है, बर्तन तुम्हारा पाक हो। बताइए 250 साल पहले मुझे दुनिया दिखा दीजिए। आज जो चिट्टे हमारे रहनुमा बने हुए ना, इन चिट्टू को 250 साल पहले देख लीजिए। अपनी तहजीब से आशनाई नहीं तो फिर ये हो गया, अरे वो तरक्की याफ्ता है, खाक तरक्की है उनकी, मां नहीं उनका, बाप नहीं, खानदान नहीं, अहली मिजाज कानून नहीं उनका। उन चिट्टू के पीछे चढ़े। आइए चिट्टू की हरकत बता रहा हूं आपको, क्या किया आपके साथ हरकत। ये मिर्जायत क्या है, इसके पसे पर्दा क्या खेल है। जो लोग इनका मुताला करते हैं जान देने मरने तक आ जाते हैं। उन्हें पता है कि हम एक किसी खास गुमराह का दिफा नहीं कर रहे, मुकाबला नहीं कर रहे, हम पूरे इस्लाम को बचा रहे हैं। ईसाइयत लड़ती रही, मारती रही। 16वीं सदी ईस्वी में जब ईसाइयत ने अपना झंडा बुलंद कर दिया, पूरी दुनिया पर उंदलस के मुसलमानों को वापस ईसाई किया, हिंदुस्तान पर हामिल हुआ, हावी हुआ, जगह जगह वो हावी होता गया। मेरे भाई मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे, ये क्या है, ये मिर्जाइयत क्या है, जरा मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, बाद में सोच लेना। कोई तबसरे वगैरह नहीं, तजिए वगैरह नहीं, टीवी नहीं है हमारा। 14 सदियों के रब से बात कर रहा हूं कि इसने चिट्टे ने जब देखा कि इस्लाम को हमने कई मर्तबा तबाह बर्बाद किया, मगर फिर एक नई ताकत के साथ नमूदार होके आ जाता है। उन्होंने हमारी हर चीज छीनी, नमाज, रोजा, हज, कसरत से इनमें बेनमाजी मिलते हैं, कसरत से इनमें गुनाहगार मिलते हैं। ये चीजें इनको खत्म नहीं करती। आइए देखा जाए कि मुसलमानों की असल कुव्वत कौन सी है, असल पावर क्या है। अगर इबादत है तो हम कई मुसलमानों को देखते हैं जो उम्र भर इबादत के नजदीक भी नहीं जाते। अगर किताब की बात है, किताब के नजदीक नहीं जाते, खिलाफ चलते हैं। ये आपके गैर की रिसर्च है जो हमने हराम समझ रखी है। रिसर्च करना गुनाह समझ रखा है। तालीम दियो है कुरान न पढ़ना गुमराह हो जाएगा, हदीस न पढ़ना गुमराह हो जाएगा। ये कौन सा नजरिया है? ये गैर की रिसर्च है आपके इस्लाम पर। 14 सदियां जंग करने के बाद पहुंचता है इस नतीजे पर, आखिर ये मुसलमान ईसाइयों से खत्म क्यों नहीं होता। तबाह बर्बाद कर डालते हैं मुसलमानों को। ये मुल्क खत्म हो गया, वजूद ना रहा, नए सिरे से फिर पावर उठ के आ गए, फिर उठ के मुसलमान आ गए। कौन सी पावर है इनके पीछे जनाब? ये बुत के तराशीदा है, तहजीब नबी है, गारत गरत काशान है, दीन नबवी है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है। इस्लाम तेरा देश है कि तू मुस्तफवी है। नज़ारा देलिया जमाने को दिखा दे, मुस्तफवी खाक में इस बुत को मिला दे। ये नजरिया इकबाल ने दिया। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, इसके बदन से रूए मोहम्मद निकाल। ये आपके गैर दुश्मन चिट्टे ईसाई का नजरिया है कि मुसलमानों की असल कुव्वत अब समझ आइए क्या। इनकी कुव्वत न नमाज, न रोजा, न इबादत, न खैर खैरात। असल कुव्वत क्या है? असल कुव्वत इनकी ताजदार मदीना का ताल्लुक और वो करंट। असल इनकी पावर जनाबे मोहम्मद अरबी की जात है। अब एक काम किया जाए, मुसलमानों से जंग की जरूरत नहीं। इनके धर्म खत्म करने को एक छोटा सा गुलाम है, बादशाह बन जाता है। आप जानते हैं तारीख का मुताला तो खैर करना हमारे लिए गुनाह है। एक इस्लामी तारीख में एक बाब है हसीन, खानदान गुलामा, मुसलमानों के गुलामों ने बादशाहियां की हैं। किसी भी कौम से ताल्लुक रखता हो,
किसी भी चीज से ताल्लुक रखता हो, कलमा मोहम्मद पढ़ता है तो ऐसी ताकत कुव्वत बनकर सामने आता है कि दुनिया हिल जाती है कि यार असल पावर इनकी मोहम्मद अरबी की जात है। अब इनको खत्म करना है तो मोहम्मद अरबी को सेकंड पोजीशन पे रखना होगा। जी जनाब, ये है मिर्जायत। जनाब मोहम्मद अरबी को सेकंड पोजीशन दो। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं कि वो मिलाद करने वालों, ईमान तो बराबर है, जनाब ईसा पर बराबर है, जनाब मूसा पर बराबर है, जनाब इब्राहिम पर बराबर है, फिर मोहम्मद अरबी का मिलाद करते हो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्यों नहीं करते? यही कहोगे ना हमारा नबी जब मिर्जा बनेगा तो मोहम्मद अरबी नहीं रहेगा। ईमान सब पर बराबर है मेरे भाई। मिर्जायत नाम है। आपने देखा कैसा लिबादा उड़ा, झूठ का एक पलंदा। ईसा अलैहिस्सलाम वाले आए, जो भी मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात थी उसको सबको बरहक कहा, अपनी तालीम दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा की तालीम को बरहक फरमाया मगर अपनी तालीम दी। ये उसी तर्ज को लेकर चला कि वही तर्ज मोहम्मद अरबी की तालीम आए मगर नबी कौन हो? मिर्जा हो। जब स्विच यहां से निकल जाए वहां लग जाए तो करंट कहां रहेगा? हम में से कोई अदना से अदना बंदा हम में से अपने माँ बाप की गाली बर्दाश्त नहीं करता, अपने उस्ताद शेख की गाली बर्दाश्त नहीं करेगा, अपने नबी की गाली बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको पता है चिट्टे जो इंतही मुतासिब कौम है दुनिया में, इन चिट्टू से घटिया कौम कोई नहीं है। तारीख पढ़ के देखो, तासुब के एतबार से ईसा अलैहिस्सलाम को कमाल की गालियां बकता है ये, बीबी मरियम को गालियां बकता है ये, भरी पड़ी है किताबें, मगर फिर भी दुनिया ईसाइयत इसको अपनी गोद में बिठाए हुए है। क्यों? वजह यह कि ये मोहम्मद अरबी का नेमुल बदल है, इसको लाओ मोहम्मद अरबी की बात ना रहे। आज 220 ममालिक में ये तंजीम है, आज वर्ल्ड लेवल भी इनको गुड मुस्लिम कहता है। वो कौन सा मुस्लिम है जिसको जनाब काफिर कहे कि गुड? आज वर्ल्ड असेंबली का है गुड, उनके प्रोग्राम होते हैं, वजीर आते हैं ईसाइयों के, कहते हैं अगर इस्लाम इसका नाम है तो दुनिया में फैल करेगा, सलाम करते हैं। अबे भाई ये कौन सा इस्लाम है? उनका पैदा करता है। मिर्जायत याद रखिए, सिर्फ छोटी बात नहीं, ये मुकम्मल इस्लाम को खत्म करके जनाब रसूलुल्लाह की जगह पर बिठाना चाहते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को। ये सपोर्ट है उनकी, ये सारी पावरें हैं उनकी, और ये नाम है अल्लामा गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह अलैह, जो मोहसिन मिल्लत इस्लामिया है। उन्होंने ये काम किया। वो समझते थे कि ये असल ने जी। खुद मिर्जा दावा करता है, यार मैं तो खुद अंग्रेज साहबान तुम्हारा पैदा करता हूं कि बाहर की चीज थोड़ी हो। आज देखिए कि आज मिर्जायत को जरा सी तकलीफ दे, तड़पता कौन है? यहां से तो यार समझ लो, वो तुम हमसे नहीं तड़पते, भूल जाएं। वो उस करंट से तड़पते हैं कि ये जैसे वैसे ढीले वीले हैं ना, मगर इनका रब्त कमाल का है। किसी वक्त भी जोश आया तो ये एटम बम बन के फट पड़ेंगे। वो उससे डरते हैं, वो तेरे मेरे से नहीं डरते। उनको खौफ मोहम्मद अरबी की जात का है कि उनका ताल्लुक ऐसा है, वो करंट लगा तो ये बम बन जाते हैं। इकबाल ने कहा तो उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते हैं, तेग क्या चीज है तोप से भी लड़ जाते हैं। ऐ मोहम्मद अरबी, अगर तेरे खिलाफ कोई हुआ तो फिर हम अपने आप से बाहर निकल जाते। मेरे भाई मिर्जायत नाम है इसका। एक आलमी लेवल पे एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। इस्लाम दुश्मन कुव्वत साहिब इल्म बैठो उधर, मैं कोई सिर्फ इशारा तर मैं कह रहा हूं किस तरह से इस्लाम को मिटाना चाहती हैं। नंगी तस्वीरें दी, ब्लूप्रिंट दिए, सूद दिया, सब कुछ दिया, फिर भी मुसलमान वैसा खड़ा है। आपको तैरना नहीं आता, आप दरिया में मगर डूब भी नहीं रहे कि एक रस्सी पकड़ी हुई है, यहां तक तो दरिया में डूबे, मगर रस्सी पकड़ी हुई है, डूब नहीं सकते। हमारी पोजीशन यही है, गुनाहों में यहां तक गर्क है। मोहम्मद अरबी की वो जो गुलामी वाली रस्सी है वो डूबने नहीं देती, वो खड़ा करके रख देती है हमें। तो मेरे मोहतरम, मिर्जायत नाम है इसका। ये इस्लाम के बराबर एक मुकम्मल कुव्वत आ रही है। आज फंडिंग उनकी, कादिर मुसा रिजवी का नाम लिख लें आप, ब्लॉक, सीडी ब्लॉक, क्या गुनाह है यार, कौन सा जुर्म है? ब्लॉक तो होना चाहिए अमेरिका का नाम लिखने से, जो 1 सदी में कई लाख इंसान का कातिल है, जिसने 7 बड़े आदमों को बर्बाद कर रखा है।
معاشی اعتبار سے, قتلام کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے پوری تاریخ لگتی ہے. جب تک مسلمانوں کا ہوگا رہا دنیا میں تو دنیا امن سے رہی. 16 عیسوی کے بعد جب سے یہ بدبخت چٹے آئے, پوری دنیا کا امن بگاڑ کے رکھ دیا انہوں نے. بندے بھی مارے, معاش پر, اکنامی پر بھی قابو ڈالا. بیٹھے وہاں رہتے ہیں, کماتے ہم یہاں, پیسہ ہمارا وہاں جا رہا ہے. ایسے ہیں یہ. آج وہ دہشت گرد ہم کہلاتے ہیں کہ محمد عربی والے ہیں. اصل بات یہ ہے جو نقطہ آپ کو عرض کر رہا ہوں, تمام اکابر کو سامنے رکھیں. صرف یہی ایک بات ہے, کیا کہ محمد عربی کو ہٹا کر سیکنڈ اس کو بنا دو, یہ خود بخود کلمہ گو جو ہیں مر جائیں گے. کیونکہ آپ کی اور میری پاور کا راز نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ میری دولت, نہ میری زبان, نہ میری آنکھ, نہ میرے ہاتھ پاؤں, نہ میرے بدن کی طاقت, نہ مجھے میسر کردہ کلہم طاقتیں, یہ میری طاقت کا راز نہیں ہے. میری طاقت کا راز ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے.